Can someone from the audience can confirm that the display is visible to you? Screen share हो रही है मेरे? Yes sir, display आपका visible है and screen भी share हो रही है, आपकी voice भी loud and clear है। मैं admin को कहता हूँ कि इनके जो mics हैं वो भी unmute कर दें, फिलहाल इनके mics mute हैं। Okay, thank you. Okay, Ji, welcome to all of you in this today's session of the training, and this session is about the use of different tools for the purpose of delivering lectures online. You people are well aware that in these days, during the spread of the coronavirus, it is not possible for us to engage the students on campus activities. Or if we are having on-campus activities, that activities are limited to some smaller number of the groups. We are not calling all of the students on campus, depending upon the situation, depending upon the circumstance that which particular institute you are working with and what policy they are following. There are different strategies that how they are managing online teaching activities in these days. In this today's session, what we are going to do, we are going to basically discuss three different tools. Namely, those are Microsoft Teams, Zoom, and Google Classroom. So we are going to discuss them one by one. So we are going to see that what are the capabilities, what are the features, and what are the limitations for each of them. So little bit about myself. My name is Zahid Anwar, and I have done my PhD from Sweden. And from 2015, I'm working as associate professor in University of Engineering and Technology in Lahore. I'm also looking in the departmental quality enhancement cell at UT Lahore as well. And I'm also looking the responsibilities for the final year project work for the undergraduate students. That was a little bit about my personal profile. So without wasting the time, we are going to start our discussion on the very first module. So in the start, we are going to have a discussion on Zoom. So we are going to discuss the features, the capabilities, and the limitations while we are going to make use of Zoom for delivering our lectures for online teaching activity. In the start, if I'm going to mention that what are the benefits, what are the key features while we are working with Zoom. So there are two different types of the accounts which we can have on Zoom. One is the freely available variant, other one is the paid variant. So majority of us are normally interested in having those resources which are freely available for the wider audience. So the freely available variant of the Zoom is having some limitations. The most common limitation is about the duration of a session. If you are using Zoom and you are using its free variant, then the maximum duration of your one session could be of 40 minutes only. And if you are having a class which is going to last for longer than the 40 minutes duration, then you have to separate your session into number of sessions. तो आपको एक lecture के लिए एक से ज़्यादा sessions book करना होंगे. This is one of the limitations if you are using the free version of the Zoom. The other limitations are that if we are using Zoom for delivering lecture online, then the second major limitation is that this particular tool is not going to facilitate us for the purpose of assessment of the students. If you're interested in doing some assessments, you're interested in assigning some quizzes, you're interested in marking some assignments which you have received from the students, और आपने उनको organize करना है, उनकी assessment करनी है, evaluation करनी है, तो Zoom का जो platform है, that is not going to help you in any detail for this particular phase. Assessment में आपको किसी तरह से कोई भी facilitation नहीं मिलती Zoom का platform use करते हुए. Once again, just quickly, I'm going to ask you to just confirm that you are basically having access to my screen. मेरी screen display हो रही है आपके सामने, audience में से कोई confirm कर दें. Yes, sir. Okay. Thank you. So, thank you. Okay, so this is the interface of the Zoom. So Zoom का जो freely available version है वो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है. Why is problem आ रहा है? Okay,
So this is the freely available version of the Zoom, which I have installed on my computer. So all three tools जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके अलावा भी कोई भी टूल जो आपने यूज़ करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, उसको यूज़ करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स आपके पास, देयर आर 2 की रिक्वायरमेंट्स. यू पीपल नीड टू हैव हार्डवेयर एलिमेंट विद यू. आपको कंप्यूटर चाहिए, या आपको मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए. एंड यू पीपल डू नीड टू हैव अ कनेक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट. तो मोबाइल या कंप्यूटर आपको चाहिए, एडिशनली आपको चाहिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको वो टीचिंग रिसोर्स चाहिए, जो भी आपने अपनी रेगुलर क्लास में जो भी मॉड्यूल टीच करने हैं उससे रेलिवेंट जो भी आपकी टीचिंग मटेरियल है, कोई बुक की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, और एनीथिंग लाइक दैट, कोई पावर पॉइंट की आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, व्हाट्सएवर जो भी आपकी टीचिंग मटेरियल जो आप स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहते हैं. So this is the very first interface which you are going to experience if you have not used Zoom before. अगर Zoom आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया है, पहली दफ़ा अगर आपने इंस्टॉल किया है और उसको जस्ट एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो this would be the interface which would be appearing in front of you. So over here we are having informations, we are having different tabs. One is named as home, other one is named as chat, third one is named as meeting, then contacts, then apps. So we are going to the home tab in the start. होम टैब पे अगर आपने क्लिक किया तो इंटरफेस ने अपनी ग्राफिक्स चेंज की. एंड नाउ दिस इज द इंटरफेस विच इज हैविंग दीज 4 डिफरेंट बटन्स. वन इज फॉर द पर्पस ऑफ न्यू मीटिंग, द अदर वन इज फॉर द पर्पस ऑफ joining a meeting, then there is for scheduling a meeting, and then there is an option for sharing your screen. So if we are interested in making use of Zoom for the purpose of delivering a lecture, we would be having this information that when our lecture is planned, आपके पास टाइम टेबल की information है, so you know your lecture is on Friday, or your lecture is on Monday, Tuesday, Wednesday, or any day in the week, and you know the timing as well. So accordingly, as per your timetable, what you are going to do, you are going to schedule a meeting. For the purpose of scheduling a meeting, what you are going to do, you are going to click on this schedule button. Once you have clicked on it, so this new window is going to open in front of you. Over here there is mentioned the information, the required information which you have to feed in is about the topic. What is this meeting is about? जो meeting plan करने जा रहे हैं, schedule करने जा रहे हैं, what is this meeting is about? ये meeting जो है इसमें क्या होने जा रहा है? I would like to ask the audience to mute your mics for a while. Later on, after the discussion of the Zoom, we are going to allow you to open your mics for the purpose of any discussion. अभी अगर आपके mics open है और कोई भी audible activity उन पे हो रही है, तो वो सबके लिए interruption create कर रही है. So kindly switch off your mics, put them on the mute mode. You people would be given a chance in after the conclusion of the discussion of the Zoom to raise any questions which we are having. So now the very first information which we have to give is to mention the topic that जो भी meeting आप plan करने जा रहे हैं वो किस topic से relevant है. So if this meeting is about some specific course which you are teaching to your students, maybe you can write the name of that course. If this is first, second, or third session, maybe you can mention that this is the first ODL session, online cum distance learning education session, for this course of thermodynamics, let's say. And then you are going to give the interface this information that when this meeting is scheduled, meeting start कब होने जा रही है, on which day, and calendar से आप choose कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा दिन choose करना चाह रहे हैं, and time accordingly. So आपके सामने मैंने अभी टाइम दिया है 12 बजे का, which is going to 12 बज जाएंगे अभी 5 मिनट के टाइम में. And then you are going to feed in the information about the time. अगर आप 45 मिनट्स की ऑप्शन लेते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि the free variant which you are having is having a time limit duration of 40 minutes. जिसमें आपके 3 या 3 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं. और मैक्सिमम आपके पार्टिसिपेंट्स की जो क्वांटिटी है दैट कुड बी 100 इन द फ्री वेरिएंट. जो फ्रीली अवेलेबल वेरिएंट है जूम का, उसमें आपके एक सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो तादाद दैट कुड बी अप टू 100. देन अगर आप नीचे आते हैं तो मीटिंग आईडी आपकी जनरेट ऑटोमेटिकली है कि जो जूम का ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी एक मीटिंग आईडी जनरेट कर देगा. देन देयर इज़ दिस सिक्योरिटी. दिस सिक्योरिटी इज़ समथिंग लाइक ए पासवर्ड. There is one default password which is now shown over here by the software.
बाय द एप्लीकेशन ऑफ Zoom। अगर आप ये पासवर्ड नहीं रखना चाहते, चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट, और जो भी आपको सूटेबल पासवर्ड लगता है आप वो फीड इन कर सकते हैं। Then there is there are some further details के what are your preferences about the videos from the host and from the participants। अब होस्ट के लिए जो बंदा मीटिंग शेड्यूल करने जा रहा है, जो टीचर है, ही इज़ बेसिकली द होस्ट हु इज़ बेसिकली कॉलिंग फॉर द मीटिंग। व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस? आप स्टार्ट पे अपनी वीडियो ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं? पार्टिसिपेंट्स जो आपकी मीटिंग जिन्होंने अटेंड करनी है, स्टूडेंट्स ने, उनके लिए आपकी क्या प्रेफरेंस है कि उनका कैमरा ऑन हो मीटिंग के स्टार्ट पे या ऑफ हो? सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। एंड देन देयर आर सम एडवांस्ड ऑप्शंस जिसमें कहा गया कि आप क्या अलाउ करना चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट किसी भी वक्त ज्वाइन कर पाएँ। पार्टिसिपेंट्स जब आपकी मीटिंग को ज्वाइन करें तो उनके माइक्रोफोन्स म्यूट हों या अनम्यूट हों, और इफ़ यू वुड लाइक टू कीप रिकॉर्डिंग ऑफ योर मीटिंग, तो फिर आप इस थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। अगर आपने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं किया, मीटिंग स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको ड्यूरिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में जाके उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फिर फाइनल एक ऑप्शन आपके पास आ रही है कि आप किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से पार्टिसिपेंट्स को अगर ब्लॉक करना चाहें तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को। After giving in all this information, what you are going to do, you are going to hit on the save button, and the application is going to schedule a meeting for you। आपने वो इंफॉर्मेशन सेव की और एप्लीकेशन एक मीटिंग आपके लिए शेड्यूल कर दी। सो ये वही Zoom का प्लेटफॉर्म है जो पहले आपको शो किया गया। उस पर अगर अब आप जाएँ मीटिंग्स में, एक तो इधर आपके पास नज़र भी आ रहा है कि फर्स्ट ODL मीटिंग, और साथ अब स्टार्ट का बटन आ रहा है, नीचे आपको बताया जा रहा है कि द मीटिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन अबाउट 2 मिनट्स। जो आपने शेड्यूल किया था टाइम उसके मुताबिक 2 मिनट में ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो 3 डॉट्स के बटन आ रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करें तो लिखा हुआ है कॉपी इन्विटेशन। आपके स्टूडेंट्स अभी सिर्फ मीटिंग शेड्यूल की है। द नेक्स्ट फेज इज़ कि आपने इस शेड्यूल मीटिंग की इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है, कि स्टूडेंट्स को इनविटेशन आपने सेंड करना है, जिस इनविटेशन को यूज़ करते हुए वो अपनी मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इनविटेशन आपको कहाँ से मिलेगी? उसके लिए आपको कॉपी ये इनविटेशन में जाना पड़ेगा। इधर आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आई। अगर आप मीटिंग्स में जाएँ और इधर ये जो लिखा हुआ है शो मीटिंग इनविटेशन, तो उसमें आपको उस पर आपने क्लिक किया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई सारी। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बिन कॉपीड बाय दिस एप्लीकेशन। क्या आप उसमें आपकी डिटेल आ रही है कि हु इज़ बेसिकली इनवाइटिंग फॉर द मीटिंग, व्हाट इज़ दिस मीटिंग इज़ अबाउट, व्हेन दिस मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड, एंड देन देयर इज़ दिस मीटिंग ID एंड पासवर्ड। So this is the information which is needed to be shared with those individuals जिनको आप अपनी मीटिंग में कॉल करना चाह रहे हैं। जब आप बीइंग अ टीचर मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो योर ऑडियंस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द स्टूडेंट्स जिनको आपने टीच करना है। तो आपने अपने स्टूडेंट के साथ ये डिटेल अपनी जो भी आपने मीटिंग शेड्यूल की है वो शेयर करना होगी। सो जब टाइम हो जाएगा आपकी मीटिंग है तो आप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, और बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग ID एंड पासवर्ड, और बाय क्लिकिंग ऑन दिस वेब लिंक, स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू ज्वाइन योर मीटिंग। नाउ अगर मैं आपको ये डेमोस्ट्रेशन दूं कि आपने मीटिंग को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, इंटरफेस कैसा लगेगा, तो आई एम गोइंग टू हिट ऑन द स्टार्ट बटन। सो मैं स्टार्ट का बटन जो था वो प्रेस किया। द एप्लीकेशन इज़ नाउ गोइंग टू ओपन और स्टार्ट दिस मीटिंग फॉर माई सेल्फ। और फिर मुझे पूछा जा रहा है कि मैं कंप्यूटर के ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने स्पीकर्स जो है उनको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। और दिस इज़ नाउ द इंटरफेस विच इज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। इस इंटरफेस में क्या देखें तो बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है कि यू आर हैविंग एन इंटरफेस ऑफ माइक्रोफोन। तो आप अगर अपना माइक म्यूट करना चाहते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं, अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, फिर आपके पास एक सिक्योरिटी की ऑप्शन आ रही है। सिक्योरिटी के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस आ रही हैं कि आप वेटिंग रूम अलाउ करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो अपनी स्क्रीन अपना नए नाम चेंज कर सकें, पार्टिसिपेंट्स को आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर पाएँ, पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं कि वो अपने आप को अनम्यूट खुद से कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस कि आप क्या चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स खुद से अनम्यूट कर लें, खुद से अपना कैमरा ऑन कर लें या ना कर पाएँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर पाएँ आपके साथ या ना कर पाएँ, आप अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। आपने अगर अपनी स्क्रीन अपने स्टूडेंट से शेयर करनी है, कोई आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, कोई PDF फाइल है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई नोट पैड है, वट एवर द रिसोर्स यू आर यूजिंग फॉर डिलीवरिंग योर लेक्चर, उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो
वो आप स्क्रीन के शेयर करना चाहेंगे, शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर आप चूज़ कर लेंगे कि आप अपना डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करना चाह रहे हैं, अपना वेब ब्राउज़र जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करना चाह रहे हैं। तो जो भी रिसोर्स आप शेयर करना चाहें उस पर क्लिक करें और शेयर कर लें स्टूडेंट्स के साथ। देन आपके पास ऊपर आ रही है ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन चल रही है। रिकॉर्डिंग में बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली कहा था कि मीटिंग जो शेड्यूल है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड किया जाए, तो अगर रिकॉर्डिंग को समवेयर ड्यूरिंग योर मीटिंग आप अपनी रिकॉर्डिंग को फॉर टेम्परेरीली स्टॉप करना चाहते हैं तो आप पॉज के बटन को क्लिक कर सकते हैं, और दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए तो फिर प्ले के बटन पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीटिंग कंक्लूड हो गई है या वैसे रिकॉर्डिंग आप नहीं चाह रहे अपनी मीटिंग की ख़त्म करना चाह रहे हैं सिरे से, तो फिर स्टॉप के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। इसके अलावा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। राइट नाउ मैंने ये जो मीटिंग अभी आपके सामने स्टार्ट की थी वो मीटिंग जो है उसका इनविटेशन मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, तो सिर्फ ओनली माई सेल्फ इज़ अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब आपने स्टूडेंट्स से शेयर की होगी और स्टूडेंट्स आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर चुके होंगे तो उन सब की लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। फिर अगर किसी स्टूडेंट को अपने प्रेजेंटेशन के राइट्स देने हैं, कि स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट पे काम किया है या वो कोई भी अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपकी इनपुट लेना चाह रहे हैं उस पर, तो उनके नेम पे जाके आप क्लिक करेंगे, देखेंगे एक इंडिविजुअल को आप म्यूट करना चाह रहे हैं, उसको आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन के राइट्स देना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम आप कर पाएंगे। आपने अपना लेक्चर डिलीवर कर लिया, जो भी रिसोर्स था टीचिंग कर लिया आपने, जो भी लेक्चर था मॉड्यूल था आपने उसकी टीचिंग कंक्लूड कर ली, तो एंड पे आप क्या करेंगे, मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। उसके लिए आपके पास ये बॉटम पे राइट हैंड साइड पे एक बटन है विद द नेम ऑफ एंड पे आपने क्लिक किया तो आप उससे पूछ रही है एप्लीकेशन कि आप मीटिंग को खाली अभी अपने लिए आप मीटिंग से बाहर जाना चाह रहे हैं या आप मीटिंग को एंड करना चाह रहे हैं फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो अगर आप सबके लिए मीटिंग को कंक्लूड कर दिया है तो आपने एंड फॉर ऑल कर दिया। क्योंकि मैंने मीटिंग की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट की थी तो वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉर्डिंग को मेरे कंप्यूटर पे सेव कर दिया है। ये लोकेशन आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फाइल्स हैं वो कहाँ पे सेव हैं। तो एक वीडियो फाइल आपके पास आ गई है जिसमें आपका जो भी लेक्चर आपने मीटिंग थी उसमें जो भी आपने काम किया उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई। So this is how you are going to work with Zoom. So this was a very brief overview of the functionality of the Zoom, जिसमें हमने सीखा ये या डिस्कस ये किया कि how to schedule a meeting, how to send an invitation of the meeting to those individuals who are supposed to attend that meeting. और फिर ड्यूरिंग मीटिंग व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल्स जो कि प्रेजेंटर के पास अवेलेबल हैं, आपने अपनी स्क्रीन वगैरह कैसे शेयर करनी है, ऑडियंस के हवाले से जो आपकी प्रेफरेंसेस उनको किस तरह से एडजस्ट करना है आपने, और फिर ये कि आपने अपनी जो मीटिंग है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। दीज वर सम ऑफ द की फीचर्स जिनको हमने डिस्कस किया है। तो अभी तक की जितनी भी डिस्कशन थी जूम के हवाले से जो हमने की उस पर हमने सिर्फ ये किया है कि आप अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए जूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर डिलीवरी के लिए आपने इसे यूज़ कर लिया, लेकिन टीचिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स ओनली। लेक्चर डिलीवर करने के बाद अगले जो आपके सेशन होंगे द लेक्चर विच इज़ गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर, उनमें शायद आपने कुछ असेसमेंट्स भी करनी होंगी स्टूडेंट्स की लर्निंग को गेज भी करना होगा। तो उन असेसमेंट्स को करने के लिए ये टीम का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कोई एडिशनल फैसिलिटेशन नहीं दे रहा। आपने कोई क्विज कंडक्ट करना है, आपने कोई असेसमेंट स्टूडेंट्स को असाइन करनी है, असाइनमेंट उसकी फिर बाद में ग्रेडिंग भी करनी है, उसके लिए कोई रूब्रिक्स आपने बनाए होंगे जिनके साथ आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे या असेसमेंट करेंगे। उन सारी असेसमेंट्स के हवाले से जूम का ये प्लेटफॉर्म आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये इसकी है लिमिटेशंस। और स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो फ्री वर्जन है उसमें आपके सेशन की ड्यूरेशन जो है वो भी लिमिटेड है, 40 मिनट्स तक है। पेड वर्जन इज़ अवेलेबल, लेकिन पेड वर्जन में डिपेंडिंग अपॉन द केस कि आपको कितने लाइसेंस चाहिए और किस तरह की फीचर्स चाहिए, आपको आपकी लेक्चर की ड्यूरेशन को इन्हांस करके कितनी आवर्स की या कितने मिनट्स की ड्यूरेशन तक लेके जाना है, पार्टिसिपेंट्स की लिमिट को आप कितना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, आप क्लाउड पे अपनी मीटिंग के रिकॉर्ड के लिए कोई डाटा अगर परचेज़ करना चाहते हैं, स्पेस परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसकी क्या आपकी प्रेफरेंस है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो आपका प्राइस पैकेज अगर आप पेड वर्जन की तरफ जाएँ कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर जूम आपको प्राइस सजेस्ट करता है आपके पैकेज की। कुछ पैकेज उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि सिंगल लाइसेंस के लिए
ये मल्टीपल लाइसेंसेस के लिए डिफरेंट फीचर्स की बेस पे प्राइस पैकेज क्या क्या होगा. So this was a very brief overview of the Zoom. Now the participants are very much free to ask any questions, put any comments on the discussion which we have done so far. There is Aladita Sab who has raised his hand. Do you have any questions, sir? I have allowed mics to the audience, so if you are having any questions or comments, you can put in your questions now. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. अच्छा सर, उसमें जब Zoom की स्क्रीन ओपन हो जाती है तो वहाँ पे व्यू की एक ऑप्शन आ रही होती है, तो उसको जरा बताइएगा. व्यू की ऑप्शन हाँ जी. Zoom की स्क्रीन आपके सामने है, ये आपके पास बटन्स हैं होम के, चैट के, मीटिंग के, कॉन्टेक्ट्स के. यहाँ नहीं सर. जब हमने लेक्चर उनको ये दे दिया ना, ये कनेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, हमने उनको ये जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ऊपर आ रही है राइट साइड पे व्यू. यहाँ यही जी. उसमें ये है कि व्यू आप स्पीकर को व्यू करना चाह रहे हैं, गैलरी को व्यू करना चाह रहे हैं कि उसमें, क्योंकि मीटिंग में अभी जो मैंने प्लान किया उसमें मैंने एक तो अपना कैमरा जो था वो स्विच ऑफ किया हुआ था. दूसरा ये है कि उसमें कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं है और इसलिए गैलरी की ऑप्शन भी उसमें शायद नज़र नहीं आ रही. और इमर्सिव इसमें बेसिकली ये है कि ये फीचर्स आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, जो ये ग्राफिक्स आपकी है, जिस तरह मेरे केस में आपको ये ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, दरमियान में एक ये गियर्स वाला आइकन नज़र आ रहा है. अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा पर्सपेक्टिव यूज़ करना चाह रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का कोई लोगो यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी दूसरा ग्राफिकल बैकग्राउंड अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर आप ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है इमर्सिव वाली, वो ऑप्शन यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर पाएंगे कि आप कौन सा व्यू लेना चाह रहे हैं. तो खुद से आपका लोगो है या कोई जो अंदर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपकी पिक्चर के अलावा एक जो बैकग्राउंड लोगो है वो आप चूज़ कर पाएंगे. ये थर्ड ऑप्शन से. बाकी स्पीकर का व्यू है, गैलरी का व्यू है, इनकी फॉर श्योर 100% विद क्लैरिटी आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी इस फीचर को यूज़ नहीं किया. इमर्सिव वाला जो है उसको आप ये कर सकते हैं कि अपने बैकग्राउंड का जो ग्राफिक्स है उसको चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. वेलकम. Do we have any other questions from the audience so far? अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. मोहम्मद असगर जी उकाड़ा से. मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो हम मीटिंग प्लान करेंगे उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर किस तरह करेंगे, उनको इनवाइट कैसे करेंगे, वो जरा तरीका अगर थोड़ा सा बता दीजिए. जी. इनविटेशन के लिए आपको पहले भी मैंने बताया कि आपके पास जब मीटिंग आपने प्लान की है, मीटिंग पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ शो मीटिंग इन्विटेशन. आपके पास मीटिंग इन्विटेशन आ गया. अब ये इन्फॉर्मेशन आप कॉपी कर सकते हैं. सिंपली ये कॉपी इन्विटेशन की ऑप्शन भी आपके पास, आप उस पर क्लिक किया तो वो इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी सारी की सारी ऑटोमेटिकली. अब ये कॉपी होगी है, इसको आपने स्टूडेंट से शेयर कैसे करना है वो आपकी कन्वीनियंस है कि आपके पास स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस हैं या आपने को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्लास का. जो ज़्यादा कन्वीनियंट मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं अगर जूम को यूज़ कर रहे हो तो वो ये है कि स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें भी रजिस्टर्ड है उसके डोमेन पे अगर कोई ईमेल एड्रेसेस बने हुए हैं या कोई भी ट्रस्टेड ईमेल एड्रेस आपके पास है स्टूडेंट्स का वेरीफाइड, तो उन ईमेल एड्रेसेस, उन ईमेल लिस्ट पे आप एक इनविटेशन की ईमेल सेंड कर देते हैं. वो इनविटेशन जो आपने यहाँ से कॉपी किया है, सिंपली आपने इन्फॉर्मेशन कॉपी की है कि दिस इज़ द मीटिंग डिटेल, ये मीटिंग है, ये टॉपिक है, ये टाइम है, ये उसकी मीटिंग आईडी है, ये पासवर्ड है. तो ये डिटेल आप स्टूडेंट को वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप जो भी मैकेनिज्म आपको मोड कन्वीनियंट समझिए उसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट से शेयर कर लेंगे. ऐसा करेंगे कि दिन से पहले भी मेरा सेशन चल रहा है सवाल एक बार करते हैं तो फिर ज्यादा चलेंगे रिजल्ट ना बढ़ने सेशन. Okay, do we have any other questions or shall we move ahead to the second tool? Sir, what is the meaning of ODL? वो ODL मैंने जस्ट लिखा था कि ऑनलाइन कम डिस्टेंस लर्निंग, जो आप कहते हैं कि ऑनलाइन या रिमोट लर्निंग, तो O स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन, D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, L स्टैंड्स फॉर लर्निंग. वो आपकी अपनी एब्रिविएशन
within our institute we use this acronym or abbreviation just to specify कि online class है, students on campus इसको attend नहीं कर रहे, distance learning program है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सर इतना है कि समटाइम ऐसे स्टूडेंट सर इरफान नजीर अस्करमाल कॉलेज रावलपिंडी सर। तो इस एलिमेंट जी जी सर, ये टाइम लिमिट की जो है ये कोई पेड के अलावा क्या ऐसा सोर्स है कि जिसकी हम जो है वो एक्सटेंड कर सकें? ओके जी, आपका क्वेश्चन टाइम लिमिट के हवाले से था। आज के सेशन में हम सिर्फ ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स उनको डिस्कस कर रहे हैं, जूम, गूगल क्लासरूम और फिर तीसरा आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो इनमें से जूम में आपके पास ये लिमिटेशन है कि आपका सेशन 40 मिनट्स का होगा। अगर आपके लेक्चर की ड्यूरेशन 40 मिनट से ज़्यादा है तो आपको एक से ज़्यादा सेशंस में अपना लेक्चर कंक्लूड करना होगा। इसके तीनों के अलावा काफ़ी सारे और टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आप डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कन्वीनियंस कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं और आपको क्या क्या फैसिलिटेशन अवेलेबल है तो आप चूज़ कर सकते हैं। उनमें से आपके पास काफ़ी सारे ऐसे आजकल टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनसे आप अपनी डेस्कटॉप एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने अपने कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे आपने कोई फाइल ओपन की है, कोई PDF डॉक्यूमेंट है जिसको आप कंसल्ट करके, जिसको यूज़ करते हुए, या PPT फाइल है जिसको कंसल्ट करते हुए आप अपना मॉड्यूल टीच कर रहे हैं, तो आप अपने डेस्कटॉप पे वो फाइल ओपन की हुई है, साथ आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, अपनी ऑडियो जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना सेशन वो पूरे का पूरा, जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है 1 आवर और इवन मोर देन दैट, आप अपना वो पूरे का पूरा सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दोज स्क्रीन और डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस। जिस तरह हमारे पास आजकल ये एड ऑन्स होते हैं जो हम अपने ब्राउजर्स में यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स में, जिस तरह एड ब्लॉक से मोस्टली सारे लोग फेमिलियर होंगे पहले ही, जो तरह तरह के एड्स आते हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए हम ब्राउजर्स में एड ब्लॉक का एड ऑन यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास एड-इन्स मिल जाते हैं, एड ऑन्स मिल जाते हैं इस तरह के, जो आपकी ऑन स्क्रीन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स भी आ जाती है आपके पास। उसके साथ साथ अगर आप कोई ऑडियो साइन यूज़ करें, ऑडियो आपने यूज़ करें उस ग्राफिक्स को क्लैरिफाई करने के लिए, नॉर्मली जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम दोनों मोड यूज़ कर रहे हैं कि आप ग्राफिकल कोई इंटरफेस भी यूज़ कर रहे हैं, वो कोई बुक है, कोई आपके लेक्चर नोट्स हैं, कोई PPT फाइल है, और साथ साथ आप अपनी वॉइस यूज़ कर रहे हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये काम करने के लिए आपको इन 3 के अलावा मल्टीपल टूल्स और भी अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपकी ऑन स्क्रीन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको यूज़ करके आप अपने लेक्चर की ड्यूरेशन अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक एडजस्ट करके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स से सेव भी कर सकते हैं। Okay, I think now we should move ahead to the second tool for today's discussion. Or once again, I'm going to mute the audience for a while so that we are not going to be interrupted by the audio signal from the other participants. Up till now, हमने जो किया था, we have discussed only Zoom. और Zoom की जो लिमिटेशंस उनको हमने डिस्कस कर लिया, जो कैपेबिलिटीज थी उनको डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस Google Classroom. So the second tool we are going to discuss is the Google Classroom. Just to clarify that my screen is visible. Can someone from the audience can confirm कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये PPT फाइल जो मैंने Google Classroom की ओपन की है, is this is visible to you? No sir, visible नहीं है सर। Yes sir. जी सर आ रही है। Yes sir. Visible है sir. Okay, thank you. विजिबल है Thank you. नजर आ रही है। Thank you. So we are going to now have a discussion on Google Classroom. Google Classroom पे हम discussion जो उसको हमने start किया है। What we are going to get an idea कि Google Classroom is basically a platform like the other online platforms जिसको हम use कर सकते हैं for the purpose of delivery of the lectures. Not only for the delivery of lectures, this platform would also be used for the purpose of assessments as well. तो इसको आप lecture deliver करने के लिए भी use कर सकते हैं और अपनी assessments को gauge करने के लिए भी use कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कोई आपकी अनाउंसमेंट्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के सारी की सारी क्लास के साथ कोई मैसेज आपने फ्लोट करना है सारे के सारे स्टूडेंट्स को, तो वो एप्लीकेशन आपको एक इंटरफेस, एक विंडो ऐसी प्रोवाइड करती है कि आप सारी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट मैसेजेस, या अगर आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है उसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, ऑडियो मैसेज आपका वीडियो मैसेज है उसको शेयर करना चाहें तो उसको भी आप उस इंटरफेस पर जाकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और
पेपरलेस इन्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली अरेंज होती जाती हैं। गूगल क्लासरूम में जो रिक्वायरमेंट है वंस अगेन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट वो ये है कि वंस अगेन यू पीपल वुड बी नीडिंग टू हैव अ कंप्यूटर, यू पीपल वुड बी नीडिंग कंप्यूटर आपके पास हो या कोई स्मार्टफोन हो, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको रिक्वायर्ड होगा on the top of that you would also be required to have connectivity of the internet. और गूगल क्लासरूम को यूज़ करने के लिए जो तीसरा फीचर रिक्वायर्ड होगा ये होगा कि यू पीपल वुड बी रिक्वायरिंग टू हैव अ जीमेल अकाउंट, आपको गूगल पे एक अकाउंट भी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि आपके पास कोई भी गैजेट है, कोई कंप्यूटर है आपके पास या कोई स्मार्टफोन है एज अ पीस ऑफ हार्डवेयर। The second is this is a connectivity of the internet which would be required, and third one in this case would be कि आपको Gmail पे या Google पे अकाउंट रिक्वायर्ड है। बाकी फिर वो इन्वायरमेंट आपकी सारी की सारी पेपरलेस इन्वायरमेंट है, सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली लिंक्ड होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होती जाएंगी। बीइंग ए टीचर आपने जो भी क्लासरूम्स अगर बनाए हैं गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो आपकी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली स्टार्ट आउट होते जाएंगे। आप अगर मल्टीपल कोर्सेज टीच कर रहे हैं, हर एक कोर्स के लिए आपने एक सेपरेट क्लासरूम बनाई है, तो हर कोर्स के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनता जाएगा आपकी गूगल ड्राइव पे, ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, जिसमें आपका क्लास मटेरियल और आपकी जो असेसमेंट की डिटेल्स है उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फिल्टर डाउन होता जाएगा, खुद से ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज वी आर गोइंग टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ टू वर्क विद गूगल क्लासरूम। सो आपको बताया ही जाएगा, डिस्कस ये किया जाएगा कि गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए क्लासेज जो है इनको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। क्लास आपने क्रिएट कर ली तो क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि असाइनमेंट्स को पोस्ट कैसे करेंगे, अनाउंसमेंट्स कैसे हम जो भी इंफॉर्मेशन की बात मैं पहले कह रहा था कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करनी है, आपने ड्यू टू एनी रीज़न कोई आपने लेक्चर रीशेड्यूल करना है और आप क्विकली चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप एक मैसेज फ्लोट करेंगे, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक कैसे वो पहुंचेगी, या आपने कोई असेसमेंट करनी है, उस असेसमेंट से रेलेवेंट कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं अनाउंसमेंट उन चीज़ों की। फिर ये है कि असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग कैसे होगी, स्टूडेंट्स को फीडबैक वगैरह आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का इंटरफेस कैसे लगेगा गूगल क्लासरूम का, टीचर का इंटरफेस कैसे लगता है गूगल क्लासरूम का, और उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। पहले तो वही है कि सारे फीचर्स आ गए हैं, बेनिफिट्स क्या है हमने पहले कह दिया जी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 चीज़ें हैं। आपको कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए, आपको सप्लाई ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट चाहिए, और थर्ड वन इज़ यू पीपल नीड टू हैव अ जीमेल अकाउंट। पेपरलेस इन्वायरमेंट है, सारे के सारा वर्क फ्लो जो है उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपकी सारी की सारी चीज़ें आपकी गूगल ड्राइव के साथ लिंक हैं, आपकी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेपरेटली आपकी डिफरेंट क्लासेस के फोल्डर बनते चले जाएंगे और उनमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती चलती जाएंगी। कम्युनिकेशन इफेक्टिव है और ईजी और फास्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन द 2 साइड्स। फैकल्टी ने स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, स्टूडेंट्स उस पर कोई अपना फीडबैक देना है, कोई कमेंट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको देखते हैं आगे। So in the start, what we are going to do, we are going to have a look into the Google Classroom from teacher's perspective. क्या being a teacher, Google Classroom में क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, किस तरह से आपको नज़र आएंगे और वो कैसे चलेगा सिलसिला। तो इस सारी चीज़ों को 1 by 1 देखते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट होगी, स्टूडेंट कैसे ऐड होंगे, वर्क फ्लो कैसे चलेगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी, चीज़ों की सारी चीज़ों की इंटीग्रेशन गूगल ड्राइव के साथ कैसे होगी। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ क्लास। क्लास की क्रिएशन के लिए आपको क्या करना है, यू पीपल नीड टू, जो बार बार आपको बता दिया, वंस अगेन रिपीट कर दो कि अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड बी नीडिंग टू हैव एन अकाउंट ऑन जीमेल। जब अगर जीमेल पे अकाउंट है तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू विजिट दिस लिंक, वेब लिंक classroom.google.com। इसमें अब फर्दर क्लैरिफिकेशन ये है कि दिस एप्लीकेशन इज सम सच थिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। गूगल क्लासरूम का कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर पाएँ। दिस इज़ बेसिकली अ ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन। जिस तरह आप अपने ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र कोई भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है या कोई भी दूसरा आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो दिस गूगल क्लासरूम का जो प्लेटफॉर्म है दिस वुड बी वर्किंग इन योर वेब ब्राउज़र। ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने नहीं जा रहा।
So what you are going to do, you are going to open your web browser, internet web browser, and you are going to visit this web link classroom.google.com. और अगर इस लिंक को आपने पहले कभी व्यू नहीं किया तो जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा दैट वुड बी एन इंटरफेस लाइक दिस वन. वो आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होगी. गूगल क्लासरूम का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, एक प्लस का बटन और ये डॉटेड आइकन आपके पास आ जाएंगे और बाकी एरिया आपके पास आएगा ब्लैंक. दिस वुड बी द केस इफ यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जब आप पहली दफ़ा गूगल क्लासरूम को यूज़ करें, आपने पहले इसको क्लास क्रिएट नहीं की, और अगर आप गूगल क्लासरूम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो देन जो भी क्लासेस आपने पहले से क्रिएट की होंगी, दोज क्लासेस जो हैं उनके आइकॉन्स इस एरिया में डिस्प्ले हो रहे होंगे. वो एक क्लास है या मल्टीपल क्लासेस, उनके आइकॉन इस ब्लैंक एरिया में अपीयर हो रहे होंगे. सो इफ़ यू आर यूजिंग द एप्लीकेशन, इफ़ यू आर यूजिंग द प्रोग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्क्रीन इज़ गोइंग टू अपीयर ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ यू, और आप क्या कह रहे हैं कि क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन. तो राइट साइड पे आपके पास टॉप राइट कॉर्नर में जो प्लस का आइकॉन है, उस आइकॉन को आप जाके क्लिक करेंगे. दिस आइकॉन इज गोइंग टू क्रिएट क्लास फॉर यू. तो जब आप उस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस, एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स जो एप्लीकेशन है वो डिमांड कर रही है. उसमें कहा गया जी कि क्लास जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट ये डिटेल्स आपको देनी है. एक ही है कि देयर मस्ट बी अ नेम फॉर अ क्लास, लिखा हुआ है क्लास नेम, and then within the brackets, within the parentheses, this is written that this is a mandatory item. आइटम देना पड़ेगी, क्लास का कोई नाम आपको रखना पड़ेगा, बगैर नाम के आपकी कोई क्लास क्रिएट नहीं हो पाएगी. फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑप्शनल है कि सेक्शन, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मल्टीपल सेक्शंस को और उनकी सेग्रीगेशन चाह रहे हैं तो आप उनको इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं कि दिस इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सो ऑन. सब्जेक्ट का नाम आप बताना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट ओवर हियर. और अगर आप इस सब्जेक्ट को किसी रूम के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है. बट दीज 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन की डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल, ये रूम की डिटेल, ये देना मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल. द ओनली थिंग विच इज़ मैंडेटरी इज़ कि इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास देन क्लास शुड हैव सम नेम. तो उसका कोई ना कोई नाम होगा जो भी क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हैं. तो मैंने एक क्लास क्रिएट की विद नेम ऑफ ट्रेनिंग्स. उसमें बाकी ऑप्शनल डिटेल्स मैंने फीड इन कर दी कि दिस ट्रेनिंग क्लास इज़ फॉर सेक्शन ए एंड सब्जेक्ट इज़ द वर्कशॉप ऑन गूगल क्लासरूम. और रूम को मैंने लेबल कर दिया कि दिस वर्कशॉप, दिस ट्रेनिंग इज़ एसोसिएटेड विद रूम नंबर 1. ये इन्फॉर्मेशन फीड इन करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वो क्लास की क्रिएशन हो जाएगी आपके पास. वंस यू हैव क्रिएटेड ए क्लास तो फिर आपका वही classroom.google.com वाला जो वेब लिंक है उसको अगर आप ओपन करेंगे तो फिर आपके पास वो स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी. मैंने जब ये स्क्रीनशॉट लिया था उसको मैंने बेसिकली 2 क्लासेस अपने गूगल अकाउंट पे क्रिएट की थी. वन वाज विद द नेम ऑफ वर्कशॉप्स एंड अनदर वन विद द नेम ऑफ ट्रेनिंग्स. तो दीज आर दोज 2 icons, those 2 buttons which are basically showing me. अब जब मैं classroom.google.com पे गया हूँ तो वो आइकॉन मेरे पास आ गया कि ये वो क्लासेस है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है. वंस यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर फॉर ऑल क्लासेस, जब आपने वो क्लासेस क्रिएट कर लिए तो जितने भी क्लासेस आपने क्रिएट किए, अगर एक क्लास क्रिएट किया तो एक बटन आ रहा होगा, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट किए तो मल्टीपल आपके पास बटन्स आ रहे हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि दीज आर द क्लासेस विच आर लिंक्ड विद योर जीमेल अकाउंट. तो आपने अभी तक किया क्या है कि एक क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है, और क्लास को जब क्रिएट कर लिया तो अगला काम ये है कि क्लास का जो इंटरफेस है वो नज़र कैसा आएगा. किसी एक बटन पे अगर आप क्लिक करें, किसी भी क्लासरूम के नाम पे, इनमें से किसी एक बटन पे आप क्लिक करते हैं. मैंने वर्कशॉप के नेम पे अगर क्लिक किया और उसका स्नैपशॉट लिया तो दिस इज़ नाउ द इंटरफेस. तो इंटरफेस में देयर आर 3-4 डिफरेंट टैब्स. वन विद द नेम ऑफ स्ट्रीम, अदर वन विद द नेम ऑफ क्लास वर्क, third one with the name of people, fourth one with the name of grades. So these are the 4 different tabs which are now available in one of the classes. So जितनी भी आप classes create करेंगे, जब किसी एक इंडिविजुअल क्लास को आप ओपन करेंगे तो हर क्लास में ये 4 डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आएंगे. तो ये 4 टैब्स किस किस काम के लिए हैं. पहला जो टैब है स्ट्रीम का, वो आप उस वक्त यूज़ करेंगे व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग टू मेक एनी अनाउंसमेंट. कोई भी आपने पहले हम बात कर रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट से शेयर करना चाह रहे हैं
बताना चाह रहे हैं कि आपका कोई क्लास रीशेड्यूल आपने किया है, कोई क्विज कंडक्ट करना चाह रहे हैं, कोई वैसे लेक्चर से रेलिवेंट कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करने के लिए यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द फर्स्ट टैब विच इज़ नेम्ड एज स्ट्रीम. सेकेंड वन इज़ लेबल्ड विद द नेम ऑफ क्लास वर्क. ये टैब आप बेसिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने क्लास में यूज़ होने वाला अपना मटेरियल जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करना है. जो भी आपने लेक्चर मटेरियल्स हैं, आपकी कोई नोट्स है, कोई बुक है, कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वॉट एवर इज़ द रिसोर्स मटेरियल जो आप स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स को आपने कोई असाइनमेंट देनी है, तो असाइनमेंट है क्या, उसकी सारी की सारी डिटेल, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और उसकी सबमिशन की गाइडलाइन सारी की सारी, या कोई क्विज़ आपने कंडक्ट करना है उससे रेलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन, तो वो सारे के सारा आपका रिसोर्स मटेरियल और आपकी असेसमेंट की सारी डिटेल जो है वो आप इस सेकंड टैब में जाके पोस्ट करते हैं. या उसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो वो भी देखने के लिए आपको ये सेकंड टैब जो है विजिट करना पड़ेगा. थर्ड टैब इज़ अबाउट पीपल का टैब जो है वो आपको ये बताएगा कि इस क्लास में कौन कौन लोग हैं जो इस क्लास को के इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें आपके पास टीचर्स की डिटेल आ रही होगी, उसमें आपके पास स्टूडेंट्स की डिटेल आ रही होगी. तो इसको भी आगे जाके देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स ऐड कैसे होंगे. और फिर साथ लिखा हुआ इधर को टीचर्स. देयर कुड बी ए केस कि एक सब्जेक्ट जो है मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उनके रोल भी आप असाइन कर सकते हैं कि आपने किसी इंडिविजुअल को ऐड किया है, वो अगर स्टूडेंट नहीं है टीचर है तो उसको आपने कैसे कंफर्म करना है और उसको को टीचर कैसे बनाना है, ये भी देखते हैं. और फिर आखिरी टैब जो है वो आपको ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है, जो भी आपने क्विज़ कंडक्ट किए हैं, कोई उनके असाइनमेंट्स आपने मार्क की हैं, तो उनकी बेसिस पर उनकी जो भी ओवरऑल असेसमेंट है तो उसके मुताबिक क्या ग्रेड्स चल रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है उनकी ओवरऑल, वो आपको आखिरी टैब में जिसका नाम ग्रेड्स है उसके अंदर जाके आपको वो सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी. तो दिस वुड बी द इंटरफेस फॉर ग्राफिकल इंटरफेस फॉर एनी ऑफ द क्लासेस. तो उसमें आपके पास हर क्लास में 4 डिफरेंट टैब्स होंगे विद द नेम ऑफ स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स. और उनकी क्लैरिफिकेशन आपको दे देगी कि इन चारों में क्या क्या होगा. इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आगे जाके फर्दर. तो अभी तक हमने जो पहला काम था वो किया है कि हमने क्लास एक क्रिएट की है, उस क्लास का जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसको देखा. अब द नेक्स्ट टास्क टू डू इज़ टू ऐड द स्टूडेंट्स इन द क्लास. कि आपने क्लास तो क्रिएट कर ली, अब क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करेंगे. जिस तरह पहले हम देख रहे थे जूम, हमने कहा जी वो मीटिंग का एक इनविटेशन का मैसेज वो खुद से एप्लीकेशन जनरेट कर देती है जिसमें आपके पास वो सारी की सारी डिटेल आ रही थी. और हमने कहा जी उस इन्विटेशन को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एनी सूटेबल प्लेटफॉर्म, चाहे वो आप ईमेल यूज़ करें, व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करें, जो भी, उससे आप वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते थे जूम के केस में. अब हम देखने जा रहे हैं कि गूगल क्लासरूम में क्या होगा. तो गूगल क्लासरूम में देयर आर मल्टीपल वेज टू ऐड स्टूडेंट्स इनटू द क्लास. तो डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस, जो भी मेथड आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आपके केस के लिए आप वो चूज़ कर सकते हैं. तो कैसे स्टूडेंट्स ऐड होंगे, तो आप स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जिस क्लास में आप स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं उस क्लास के नेम पे क्लिक करें. classroom.google.com पे जाएं. आपकी वो जो नॉर्मल वर्किंग क्लासेस हैं वो आपके सामने, ऑपरेटिव क्लासेस आपके सामने शो होंगी. जिस क्लास में आपने स्टूडेंट्स जो करना है ऐड करना है उस क्लास के नेम पे क्लिक करें. और फिर आपके पास ऑप्शन आ रही है, इधर एक ऑप्शन आ रही है आपके पास पीपल की, जिसमें आपको पहले बताया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन कौन लोग हैं जो इस क्लास के नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं. और इधर नीचे अगर आप देखें तो क्लास नेम आपके पास आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन जो थी सेक्शन की वो आ रही है. और थर्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है क्लास कोड. तो स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. वन ऑफ द वेज इज़ कि आप स्टूडेंट्स को ये क्लास कोड खुद से बता दें. जो भी आप क्लास क्रिएट करेंगे उसके लिए क्लास कोड गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो खुद से क्रिएट करेगा. तो ये क्लास कोड आप स्टूडेंट्स को अगर दे दें तो स्टूडेंट्स आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. एक तरीका ये है कि आप स्टूडेंट्स के साथ ये क्लास कोड शेयर करें. क्लास कोड कैसे शेयर करेंगे वो वंस अगेन क्या इधर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द ईमेल प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म आपको कन्वीनियंट लगता है उस प्लेटफॉर्म से आप ये जो क्लास कोड की इन्फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स से शेयर कर लें. तो इस क्लास कोड को फीड इन करके स्टूडेंट्स आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने वो पीपल पे गए, पीपल में आपके पास स्टूडेंट्स की ऑप्शन आई.
तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। आपके पास नीचे एक बटन होगा इनवाइट का, स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए आप ये बटन यूज़ कर लें। जब इनवाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इनविटेशन का लिंक आ जाएगा, और ये लिंक आप स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स की वेरीफाइड ईमेल एड्रेसेस आपके पास हैं तो वो ईमेल एड्रेसेस फीड करके ये लिंक स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हैं, और इस लिंक को विजिट करके वो आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो या आप क्लास कोड यूज़ करें या आप ईमेल एड्रेसेस यूज़ करके स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें। पहले आपको करके क्लास कोड है ये शेयर कर लें स्टूडेंट के साथ, तो वो ज्वाइन कर पाएंगे क्लास को। ज्वाइन कैसे करेंगे कि वो भी इसी classroom.google.com को विज़िट करेंगे, प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आती हैं आपके पास कि आप क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जाएंगे क्लास को ज्वाइन करने की तरफ। जब ज्वाइन क्लास की तरफ जाएंगे तो फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन देना होगी कि क्लास कोड क्या है, अगर वो क्लास कोड के जरिए क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पीपल वाले टैब में फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास अगर मल्टीपल टीचर्स हैं आपके पास तो आप ये प्लस, ये जो पार्टिसिपेंट्स वाला आपके पास आइकॉन है उसके ऊपर प्लस का आइकॉन है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ रही है इनवाइट टीचर्स की। अगर किसी सब्जेक्ट को मल्टीपल टीचर्स टीच कर रहे हैं तो उनको भी बाय मेकिंग यूज़ ऑफ देयर ईमेल एड्रेसेस आप ऐड कर सकते हैं और टीचर का रोल दे सकते हैं उन्हें। तो आपने एक क्लास क्रिएट की, क्लास में जो स्टूडेंट्स ऐड होने हैं, जो को टीचर्स ऐड होने हैं, उनका जो उनसे रेलिवेंट जो क्यूरी है, जो भी प्रोसेस है वो देखा। अब द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कि आपने असेसमेंट्स कैसे करनी है। स्टूडेंट्स ने उनको जो डिफरेंट काम्स आपने असाइन करने हैं, उनकी जो अटेनमेंट है उसको गेज करने के लिए आपने असाइनमेंट्स उनको कैसे असाइन करनी है, क्विज़ेस कैसे कंडक्ट करने हैं, कोई भी अनाउंसमेंट जो हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ तो वो कैसे करना है। अनाउंसमेंट्स के लिए आपने जो स्ट्रीम वाला टैब है वो यूज़ करना है। तो आपको कोई भी अनाउंसमेंट करनी है अपनी क्लास के साथ, तो उसके लिए हमने कहा था कि आप पहला टैब यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम वाले टैब पे क्लास में जाएंगे, क्लास में स्ट्रीम वाले टैब पे जाएंगे और उस पर आपका जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो classroom.google.com पे जाना पड़ेगा वेब ब्राउज़र में, क्लास चूज़ करनी पड़ेगी जिस क्लास के साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, और उस क्लास में जाके स्ट्रीम वाला टैब जो है वो आपको यूज़ करना होगा। वंस अगर आप क्लिक करेंगे ये स्ट्रीम वाला टैब तो आपसे पूछा ये जाएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं वो किस क्लास के साथ करना चाह रहे हैं। ये विंडो ओपन होगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करनी है वो किस क्लास के साथ करनी है। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, मल्टीपल क्लासेस आपने क्रिएट किए हैं और आप इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वो किसी एक क्लास के लिए करना चाहते हैं, तो आप वो पर्टिकुलर क्लास जो है वो चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। फिर आप वो मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए देना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को मैसेज देना है। तो नॉर्मली जो जेनेरिक है हमारी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। और नीचे फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, अगर वो टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, कोई टेक्स्ट है तो आप इधर लिख सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने जब ये स्नैपशॉट लिया तो मैंने सिंपली लिखा वेलकम टू द क्लास। तो अगर आप कोई क्लास रीशेड्यूल कर रहे हैं, कोई डेट शीट शेयर कर रहे हैं, कोई क्विज़ का स्केड्यूल शेयर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ये टेक्स्ट स्टूडेंट से शेयर कर पाएंगे, इस टेक्स्ट जो भी आपका मैसेज है उससे रेलेवेंट कोई एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास कोई फाइल है आपकी गूगल ड्राइव में, आप कोई वेब लिंक स्टूडेंट्स को रेफ़र करना चाहते हैं, आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर से स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहते हैं, कोई भी वो PDF है, वर्ड फाइल है, कोई भी नोटपैड है, PPT है, व्हाट्सएवर जो भी फाइल आप अगर शेयर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से वो अटैच कर सकते हैं अपने मैसेज के साथ, या किसी YouTube की वीडियो को आप रेफ़र करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने मैसेज के साथ। तो आपने एक मैसेज अपना फ्लो टाइप किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करनी थी स्टूडेंट के साथ, उससे रेलिवेंट अगर कोई एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज वो अटैच करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो चूज़ करें। वंस यू हैव अटैच्ड दोज एडिशनल आइटम्स विद योर मैसेज, फिर आप क्लिक करने जा रहे हैं पोस्ट पे। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आपका मैसेज आपके स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा। और एडिशनली फिर ये है ऑन द टॉप ऑफ दैट कि आपका मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुंच गया, स्टूडेंट्स उस मैसेज पे कोई फीडबैक देना चाहें, कोई कमेंट्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपके मैसेज पे कोई कमेंट्री ना कर पाएँ, फीडबैक ना दे पाएँ, तो आपको सेटिंग्स में जाके ये ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स की फीडबैक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
बट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको ये सेटिंग प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट्स आपकी जो भी मैसेज है उन पे फीडबैक आपको दे सकते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो सकती है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज की, स्टूडेंट्स ने उस पर जो भी उनका फीडबैक है वो आपके साथ शेयर कर लिया। तो दोनों तरह से ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉसिबल। अभी हमने ये डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे हो गया। अब अगला काम ये है कि आपने स्टूडेंट्स की कोई असेसमेंट करनी है जिसके लिए आप कोई क्विज कंडक्ट करना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट्स असाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए आपको क्लासरूम वाले टैब में जाना है। क्लास वर्क वाला जो टैब था उसमें जाएंगे और क्लास वर्क वाले टैब पे जब क्लिक करेंगे तो जो ग्राफिक्स आपकी होगी स्क्रीन की वो कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास एक क्रिएट का बटन आ रहा होगा तो विद अ प्लस आइकॉन। तो क्रिएट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ जाएगी जो आपको ये बता रही है कि आपको असाइनमेंट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, आपको क्विज कंडक्ट करने में इंटरेस्टेड है, आप कोई क्वेश्चन फ्लोट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, या आप कोई रिसोर्स मटेरियल जो है आपके लेक्चर्स का वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, या कोई पोस्ट आपने पहले ही यूज़ की थी उसको दोबारा से तो अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए वो री यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है उसकी ऑप्शन आ रही है आपके पास। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस कि आप कोई असाइनमेंट स्टूडेंट्स को असाइन कर रहे हैं या कोई क्विज कंडक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं आप वो चूज़ करेंगे, या आपने कोई लेक्चर मटेरियल स्टूडेंट्स से एक्सचेंज करना है तो आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वंस आपने वो अपनी ऑप्शन सेलेक्ट की है, मैंने अपने केस में असाइनमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट की तो दिस वाज द इंटरफेस कि असाइनमेंट की ऑप्शन मैंने ली तो इंटरफेस कुछ इस तरह से अपीयर हुआ जिसमें पूछा मुझे ये गया कि व्हाट इज़ द टाइटल, असाइनमेंट का टाइटल क्या है। उस असाइनमेंट के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मैंने स्टूडेंट्स को देनी है तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं इधर लिखूंगा। ये असाइनमेंट जो है मैं इसको स्टूडेंट से सॉल्व करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, सबमिशन उन्होंने इंडिविजुअली करनी है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स करनी है, और फिर मतलब ये कि कोई भी एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबमिशन से रेलिवेंट है असाइनमेंट की वो अगर आप लेना चाहें तो आप इधर ऑप्शन दे सकते हैं। वंस अगेन चूँकि सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं गूगल अकाउंट के साथ तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट के साथ कोई भी फाइल जो आपके गूगल ड्राइव पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई वेब लिंक आप स्टूडेंट्स को रेफ़र करना चाहते हैं कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए ये वेब लिंक जो है उसको गो थ्रू करना स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो वेब लिंक रेफ़र कर सकते हैं। कोई और फाइल है ऐसी जो आपकी गूगल ड्राइव पे नहीं है लेकिन आपकी कंप्यूटर पे कहीं पड़ी है डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में वो शेयर करना चाहते हैं तो आप वो फाइल वाली ऑप्शन में जाके वो फाइल क्लिक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। कोई यूट्यूब की वीडियो है वो स्टूडेंट्स को रेफ़र करना चाहते हैं असाइनमेंट से रेलिवेंट वो रेफ़र कर सकते हैं। और फिर ये है कि अपनी असाइनमेंट की क्रिएशन के लिए अगर आप गूगल डॉक्स को या गूगल स्लाइड्स गूगल शीट्स को या ड्राइंग्स को या फॉर्म को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस साइड पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो भी असाइनमेंट आपने डिज़ाइन की वो किस क्लास के लिए है। तो ये वंस अगेन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपके पास। अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो आप अपनी वो क्लास चूज़ कर सकते हैं जिसको आप ये असाइनमेंट असाइन करना चाहते हैं। और फिर वही कि स्टूडेंट्स की डिटेल की असाइनमेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है, हाउ मेनी पॉइंट्स दिस असाइनमेंट इज़ गोइंग टू कैरी, व्हाट इज़ द ड्यू डेट। अगर आप टॉपिक से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन करना चाहें तो वो मेंशन कर सकते हैं। और आखिर में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि रूब्रिक्स आप ऐड कर सकते हैं। ये बटन है एक विद प्लस आइकॉन जिस पर लिखा हुआ है रूब्रिक्स कि आप इस असाइनमेंट को मार्क करने के लिए आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी, आप कौन सी 2-4 चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं इस असाइनमेंट को मार्क करते हुए, एंड व्हाट वुड बी दो सर्कमस्टांसेस कि जिनमें आप स्टूडेंट्स को मिनिमम मार्क्स दे रहे हैं, on what basis you are going to award students average marks or when students are going to get the maximum marks, वो चीज़ें आप डिफाइन करेंगे अपने rubrics टेबल में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं rubrics टेबल आपको बनाना उसको क्या ज़रूरी है जब आप असाइनमेंट्स की ऑनलाइन मार्किंग करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स आपको सबमिट करवा देंगे, असाइनमेंट्स आपके पास आ गए और अगर आपने rubric टेबल बनाया है तो आप असाइनमेंट देख के rubric टेबल में से मार्क्स उनको असाइन कर सकते हैं, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम या जो भी आपने उसमें डिफाइन किया हुआ कि 3 नंबर कब देने हैं, 5, 7, 10 की जो भी रेंज है आपकी। So, ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड इन करने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू हिट ऑन द असाइन बटन। आप वो असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट को जब असाइन करनी है तो आप असाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे फर्दर पूछा जाएगा कि आप अभी स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट असाइन करने जा रहे हैं, इसको सेव आपने करना है एज अ ड्रॉप, या इस असाइनमेंट को शेड्यूल करना है, आप अभी स्टूडेंट को साइन नहीं करना चाह रहे, आप लेटर ऑन इन द कमिंग वीक असाइन करना चाह रहे हैं, अभी वैसे आपने ड्रॉप रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस जो भी केस है, अभी असाइन करनी है, बाद में असाइन करनी है, सेव करना है ड्रॉप को, तो आपको चूज़ कर लेंगे।
दिस इज़ हाउ कि आप असाइनमेंट कैसे स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं। सिमिलरली असाइनमेंट की बजाय अगर आपने क्विज़ लेना था तो आप क्विज़ असाइनमेंट पे जाते हो, एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाता जिसमें अकॉर्डिंगली क्विज़ से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती। तो मैंने वो असाइनमेंट असाइन की स्टूडेंट्स को, तो जब असाइनमेंट असाइन कर दी तो मेरे पास अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जब जिस वक्त मैंने ये स्नैपशॉट लिया था कि देयर वर 25 स्टूडेंट्स इन टोटल। तो अब जिस वक्त ये स्नैपशॉट लिया गया था फरवरी 24 को, तो उस वक्त स्नैपशॉट फरवरी 24 को नहीं लिया गया था, जिस वक्त असाइनमेंट ड्यू डेट। जिस वक्त ये स्नैपशॉट लिया उस वक्त किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट करवाना है। तो असाइनमेंट की डिटेल आ रही है मेरे पास और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितने स्टूडेंट ने सबमिट कर दी, कितने स्टूडेंट ने अभी सबमिट करना है। जैसे जैसे स्टूडेंट सबमिट करवाते जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आते जाएंगे, ये रीडिंग्स चेंज होते जाएंगी ऑटोमेटिकली, और फिर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट पे क्लिक करके आप उनको मार्क कर पाएंगे। तो आपने जब स्टूडेंट किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की असाइनमेंट जो थी उसको ओपन किया, उसकी आपने मार्किंग की, और उस पर अगर आपने कुछ स्टूडेंट को फीडबैक देना थी, कोई कमेंट करना था, तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं। आपने अगर रूब्रिक टेबल बनाया तो अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क करने में हेल्प आउट करेगा। और अगर आप मार्किंग के बाद स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, तो आप लिख के वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट्स उस इन्फॉर्मेशन पे कमेंट्री कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आपके पास ये कंट्रोल होगा कि स्टूडेंट्स की कमेंट्री आपने अलाउ करनी है या नहीं करनी। और जिस तरह बार बार आपको बताया गया कि ये सारी की सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं आपकी गूगल ड्राइव से, आपका जीमेल का अकाउंट यूज़ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं कि क्लास में आपका जो मटेरियल है, जो भी आपने क्लास के असेसमेंट स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के साथ लिंक हैं। तो जब आप classroom.google.com यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने क्लास का जो इंटरफेस आपके सामने ओपन किया है, तो उसमें मेरे पास ये जो 4 डिफरेंट टैब्स, उनके अलावा एक कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रही है क्लास ड्राइव फोल्डर की। तो गूगल ड्राइव का एक फ़ोल्डर बन गया क्लास का। अगर मैं गूगल ड्राइव में जाऊंगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि देयर आर डिफरेंट फोल्डर्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो हर क्लास का जो मटेरियल है, जो रिसोर्स मटेरियल और जो असेसमेंट के मटेरियल है, वो उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होता चला जा रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स भी जब जीमेल का अकाउंट यूज़ करके गूगल क्लासरूम को यूज़ करें तो उनके गूगल ड्राइव में भी हर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का एक सेपरेट फोल्डर बनता चलता जा रहा है, जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिलती चली जा रही है कि क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, क्या असेसमेंट्स उनकी हो चुकी हैं, क्या असेसमेंट होने वाली हैं इन द फ्यूचर। अभी तक की जितनी भी हम बातें की हैं उसमें हमने ये देखा है कि क्लास क्रिएट कैसे होगी, स्टूडेंट्स क्लास में ऐड कैसे होंगे। उसके बाद हमने बात ये की है कि असेसमेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स की, और फिर ये कि चीज़ें सारी की सारी लिंक्ड हैं गूगल ड्राइव के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ना लेक्चर डिलीवर करने के लिए आप गूगल को, उनके प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। जो आपने ऑनलाइन अगर लेक्चर डिलीवर करना है उसकी आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई अभी तक, जो इंटरफेस आपने देखा है। वंस अगेन अगर क्लासरूम का इंटरफेस आप देखें तो उसमें आपके पास है स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। ये 4 टैब्स हैं। इनके अलावा कोई ऐसी बटन, कोई ऐसा टैब एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आप अपनी मीटिंग प्लान कर पाएँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द गूगल्स। गूगल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी के लिए हेल्प प्रोवाइड नहीं करता। जो ऑनलाइन आपने लेक्चर डिलीवर करना है उसको, उसके डिलीवरी के लिए आपको गूगल का एक जो दूसरी इन्वायरमेंट है, गूगल की एक दूसरी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, जिसका नेम है गूगल मीट। तो आपने अगर अपना लेक्चर डिलीवर करना है, उस लेक्चर को आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो लेक्चर डिलीवरी के लिए आपको गूगल का जो दूसरा इंटरफेस है विद द नेम ऑफ गूगल मीट वो यूज़ करना है, जिस पे जाके आप अपनी मीटिंग प्लान करेंगे। और जब वो मीटिंग आपने प्लान किया तो उसमें वही सारे के सारे फीचर्स हैं जो जूम की क्लास में आपने पहले देखा है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स की वीडियो ऑन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उनके माइक पे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी टाइम पे अगर आपने पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटर के राइट्स देने हैं तो वो दे पाएंगे। लेकिन वो गूगल मीट का भी जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटेशन नहीं देता। उसमें उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लेक्चरिंग के लिए, लेकिन जो फ्रीली अवेलेबल वेरिएंट है वो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेक्चर रिकॉर्ड करके नहीं देता। तो फिर अगर आप गूगल का इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम फॉर ऑल दीज डिटेल्स, इनको हमने पहले डिस्कस की है,
और गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ योर लेक्चर्स, तो आपको एक एडिशनल ऐड इन चाहिए जो आपकी डेस्कटॉप पे होने वाली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर ले, अगर आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वन सच टूल इज़ विद द नेम ऑफ लूम, LWM, लूम। Another tool is with the name of Screencastify, and there are many other tools. तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी बात पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट किया कि जिस तरह हम एड ब्लॉक का एक एडिंग यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह अगर आप एड इन्स को ही सर्च करें तो आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, डेस्कटॉप की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी सारे एड इन्स आपके पास मिल जाते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो भी आपको एड इन बेहतर लगे वो आप यूज़ करेंगे। गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म आपको स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, क्लास मटेरियल शेयर करने के लिए, असेसमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए ये सारे के सारे फीचर्स फ्रीली प्रोवाइड कर रहा है। सारी चीज़ें आपके गूगल ड्राइव के साथ लिंक है। लेक्चर डिलीवरी के लिए आपको गूगल का एक दूसरा इंटरफेस यूज़ करना पड़ रहा है विद द नेम ऑफ गूगल मीट, और गूगल मीट भी आपको लेक्चर आपका रिकॉर्ड करके नहीं देगा। लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए यू पीपल वुड बी नीडिंग अनदर एड इन, और वो एड इन आपको कोई भी ऐसा एड इन चाहिए जो आपकी डेस्कटॉप पे होने वाली एक्टिविटीज़ को आपको रिकॉर्ड करके दे। These are the limitations of the free variant of the Google Classroom. अगर आपके पास Google Classroom का पेड वेरिएंट हो तो जिस तरह आपके पास Google कैलेंडर का एक ऑप्शन आ रहा है, Google क्लास ड्राइव फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह एक थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाती है विद द नेम ऑफ Google Meet। इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही तो आप अपने क्लासरूम, Google क्लासरूम के अंदर बैठे अपनी मीटिंग को प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पेड वेरिएंट में। अगर आप फ्री वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस इंटीग्रेटेड नहीं है। गूगल क्लासरूम आपको सेपरेटली यूज़ करना है, गूगल मीट सेपरेटली यूज़ करना है, ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक थर्ड एप्लीकेशन अलग से यूज़ करनी है। तो आपके अलावा हमने गूगल क्लासरूम के फीचर्स को डिस्कस किया, इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया है, और बीइंग अ टीचर जो इंटरफेस है ग्राफिक्स का उसको डिस्कस किया है, और इसकी जो लिमिटेशंस उनको डिस्कस किया, और लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो पाथवेज है हमारे पास फ्रीली अवेलेबल वेरिएंट को यूज़ करते हुए उनको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है। अप टिल नाउ गूगल क्लासरूम से रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क नाउ। सर ये जो असाइनमेंट अपलोड होगी तो ये उसकी टाइप असाइनमेंट होगी या अटैचमेंट होगी वर्ड या पीडीएफ की फॉर्म के अंदर? वो हम स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस है और टीचर की अपनी है प्रेफरेंस। टीचर ने बेसिकली इंस्ट्रक्शन देनी है स्टूडेंट्स को कि आपको वो किस तरह से चाहिए, कि आप क्या अलाउ करें स्टूडेंट्स को। हैंड रिटन असाइनमेंट, वो पेजेस पे जो भी आपने असाइनमेंट दिया उसको सॉल्व करें, उसकी स्नैपशॉट लें और उसको अटैच करें, या वो वर्ड या एक्सेल का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपनी जो भी असाइनमेंट है उसको सॉल्व करें और उसको सबमिट करें, या वो गूगल के जो है आपके पास टूल्स अवेलेबल कि गूगल डॉक्यूमेंट को यूज़ करें, या गूगल स्लाइड्स को यूज़ करें, या गूगल शीट्स को, या गूगल ड्राइंग्स को, या गूगल फॉर्म को यूज़ करते हुए वो असाइनमेंट सबमिट करें। तो स्टूडेंट्स के पास भी इसी तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें वो टाइप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी उनके पास अवेलेबल होगा, और उस अपने मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए वो फाइल्स अटैच भी कर सकते हैं साथ। तो टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उन्होंने वो हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करवानी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है, पावर पॉइंट में, एक्सेल में काम करना है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सबमिट करवाना है, तो टीचर ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। बट इन द इन्वायरमेंट आपकी कैपेबिलिटी ये है कि वो अपने कंप्यूटर से फाइल्स अटैच कर सकते हैं। वो फाइल्स आपकी वर्ड फाइल हो सकती है, पीपीटी हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल भी हो सकती है। जी सर। जी मोहम्मद सही सर। सर अगर आप एक छोटा सा क्विज बना के भी दिखा देना तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। 5 नंबर का बनाने के लिए हमारे पास टाइम, असल में हम जो टाइम हमारे पास है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो एक बनाया रेडी क्विज जो है वो मैं आपको शेयर दिखा सकता हूँ अपने जीमेल अकाउंट से। क्योंकि क्विज बनाने के लिए आपको पहले तो वो क्वेश्चंस फिल्टर डाउन करने हैं जिन को आपने यूज़ करना है एज अ पीस ऑफ असेसमेंट, और जारी बात है फिर उसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, स्टूडेंट साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे होगी, क्वेश्चंस को आप शफल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या सर ये कोड कैसे क्रिएट होगा?
जी जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपके सामने ये मैं ओपन कर रहा हूँ अपना ब्राउज़र, तो उसमें से जो ऑलरेडी एक क्रिएटेड क्विज है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास काफ़ी कम है, 1:15 तक हमें वाइंड अप करना है और एक अभी हमारा जो टूल है वो रहता है, लेकिन मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मेरे गूगल ड्राइव ओपन हो जाए। सो ये गूगल ड्राइव में बेसिकली कोड कैसे क्रिएट होगा? जी वन बाय वन आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस करते जाते हैं। पहले अभी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पूछे थे कि क्विज बनेंगे कैसे। क्विज बनाने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपके पास जो गूगल ड्राइव का आपका है, आपका गूगल अकाउंट जो है वो आपको साइन इन करना है, गूगल ड्राइव में जाना है, और गूगल ड्राइव में आपके पास ये जो न्यू के ऑप्शन आ रही है, न्यू में अगर आप जाएँ और न्यू में अगर आप गूगल फॉर्म्स में जा रहे हैं तो आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह का है। आप इसका टाइटल भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्विज है, सेकंड क्विज है, थर्ड क्विज है, क्या है, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स आप बता सकते हैं। और फिर आप ये चूज़ कर सकते हैं कि वो क्विज आपका जो है वो किस तरह का है। मल्टीपल चॉइस आप ऑप्शंस दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से स्टूडेंट्स को कोई राइट ऑप्शन चूज़ करनी है, कोई शॉर्ट आंसर देना है स्टूडेंट्स हैं, कोई पैराग्राफ की फॉर्म में आप उनसे क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। क्विज का कोई टाइटल होगा, क्वेश्चन जो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी, मगर वो मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उसकी जो भी राइट या रॉन्ग ऑप्शन है वो आप मेंशन करेंगे। नीचे आप ये बताएंगे कि इसको सॉल्व करना अगर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है तो वो मेंशन कर सकते हैं, अगर कंपलसरी नहीं है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा सर, जहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जी सर, जहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस जहाँ आपने बताया ना आपने, अब इसी पे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से लॉन्ग वाला भी है, तो अब इसका आंसर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो इसका जवाब हमें देगा या ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है वो तलाश कर लेगा, या इसका आंसर भी हमें लिखना पड़ेगा? बस जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, सपोज करें हम देना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमें फीड करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी मार्किंग ऑटोमेटिकली नहीं होगी। अगर आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि जिसमें आपने स्टूडेंट से कमेंट्री मांगी है, चाहे वो शॉर्ट पैराग्राफ है या लॉन्ग पैराग्राफ है, कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट है, उसकी ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग नहीं होगी। वो आपको उस हर इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन जो है उसकी कमेंट्री खुद से पढ़ के उसे मार्क करना होगा। वो सॉफ्टवेयर उसको बाय डिफ़ॉल्ट मार्क नहीं करेगा। क्विज को बनाने का जो प्रोसीजर था उसमें ये है कि आपने ये गूगल फॉर्म में गए, गूगल फॉर्म में आपने एक नई फाइल खोल ली थी और आपको ये इंटरफेस नज़र आ गया कि ये इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपको क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन देनी होगी, ऑप्शंस देना होगी। क्योंकि ये गूगल फॉर्म है, अब एप्लीकेशन को ये बताने के लिए कि इस फॉर्म को आप एज अ क्विज यूज़ कर रहे हैं, आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, सेटिंग में आखिर में आपके पास ऑप्शन आ रही है क्विजेज़ की, तो क्विज़ में आप ये क्लिक करेंगे कि जो भी आपने फॉर्म बनाया है इसको क्विज़ बना दिया जाए, तो मेक इट दिस क्विज़। और उसके बाद है कि अगर क्विज़ की ऑटोमेटिक आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप फौरी तौर पे स्टूडेंट्स के ग्रेड रिलीज़ करना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि लेटर ऑन, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल परसों कभी स्टूडेंट्स को बताएंगे उनके क्या ग्रेड हैं, तो आप अपनी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। फिर ये है कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख पाएँ, वो उन्हें पता चले कि उन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन मिस किया है। आप ये चाह रहे हैं कि उन्हें पता चल जाए करेक्ट आंसर क्या है, या नहीं चाह रहे ऐसा? आप ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि एक जो क्वेश्चन उसके कितने मार्क्स हैं, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। और इसके अलावा आपके पास प्रेजेंटेशन के हवाले से ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन सेम ऑर्डर में डिस्प्ले ना हो, कि पहले एक स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दूसरे के पास क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पे अपीयर हो रहा हो, तो फिर आप ये ऑप्शन शफल क्वेश्चन वाली जो है वो ले लेंगे। और इसके अलावा आपके पास ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं जिनके एक ईमेल एड्रेस से सिर्फ एक ही दफ़ा कोई स्टूडेंट जो है वो आपके फॉर्म को एक्सेस कर पाए, तो फिर आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स वाली ऑप्शन जो है वो ले लेंगे। तो जब स्टूडेंट्स फॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उनसे उनका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, और एक ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट आप स्टूडेंट्स अपनी सबमिशन एक दफ़ा कर पाएंगे। तो ये सारी वो मल्टीपल ऑप्शन हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं क्विज़ के इंटरफेस के अंदर। ये एक क्विज़ है जिसको मैंने पहले कंडक्ट किया था अपनी क्लास में, तो उसका इंटरफेस में आपके अच्छा नाला है।
जी, दिस वाज द क्विज। और इस क्विज को अगर आप देखें तो अब उसमें ये सारी ऑप्शन स्टूडेंट से पूछी गई है कि ये 5th ODL क्विज था। स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस पूछा गया, नाम पूछा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईमेल एड्रेस दोबारा से पूछा गया है, वो टॉपिक आ गया है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के बाद वो ऑप्शंस अगर हैं तो कितनी ऑप्शंस हैं, और फिर ये नीचे आपके पास आ रहा है कि इस क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं। और जब आपने चेक करना है तो फिर आपने ये बताना है, ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग जब करनी है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर ये वाली ऑप्शन ठीक है तो आपने इसको लिखा हुआ है कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन ठीक नहीं है जो भी आपके आंसर करेक्ट आंसर के ऑप्शन है उसको आप ये क्लिक करेंगे कि कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, तो वो आपके एक मार्किंग के लिए यूज़ होगा, स्टूडेंट्स की सबमिशन उसके अगेंस्ट चेक होगी। तो ये क्विज मैंने क्रिएट किया है तो उसको क्विकली मैंने आपको शो कर दिया है। इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन है किसी के क्विज के अलावा गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म से तो वो आप अभी पूछ लें, अल्टरनेटिवली हम अपनी आखिरी जो एप्लीकेशन उसकी तरफ जाएँ। जी नेक्स्ट चलें सर। Okay. So the third application for the today's discussion is Microsoft Teams. तो Teams का जो प्लेटफॉर्म है उससे रेलिवेंट हमें डिस्कशन करनी है और टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो वी वुड बी वेरी ब्रीफ। बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं डिस्कस कर पाए क्योंकि सारी बात है सेशन की लेंथ को फॉलो करते हुए हमें चीज़ों को डिस्कस करना है, और हर एक इंडिविजुअल टूल में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और सारी की सारी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश ये की गई है कि उन ऑप्शंस को एटलीस्ट डिस्कस कर लिया जाए जिनको आप ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ योर लेक्चर यूज़ करते हैं रिपीटेडली। उन एप्लीकेशन उन स्पेसिफिक एप्लीकेशन से आपको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नेटवर्क को। आप में से कोई जैसे ये कंफर्म कर दे कि आपको ये पीपीटी की फाइल जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ये ग्राफिक्स का इंटरफेस नज़र आ रहा है? जी सर हो रही है, नजर आ रहा। जी सर क्लियर सर, विजिबल। थैंक यू। सो अभी तक जो पहले हमने दो मॉड्यूल्स, दो इंटरफेसेस, दो टूल्स जो डिस्कस किए थे, जूम और गूगल क्लासरूम, उनमें हम ये कह रहे थे कि दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी कि वो फ्रीली अवेलेबल वर्जन भी है उनका और पेड वर्जन भी है, और फ्री जो वर्जन है उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं और पेड वर्जन जो है उसकी कुछ अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। उस कंट्रास्ट के साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको कंपेयर करें उन्हीं चीज़ों के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो प्लेटफॉर्म है इसका फ्रीली अवेलेबल वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता अभी आपके पास। तो डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको थ्रू HEC एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है इस प्लेटफॉर्म की, और वी ऑलरेडी नो कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के पास, बल्कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के पास अभी इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस नहीं है। Hopefully in the coming time HEC is having the plans to do the facilitations for higher education institutions, तो जो फ्यूचर है उसमें थ्रू HEC ये प्लेटफॉर्म जो है उसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक इसकी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सेशन करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत इसकी कैपेबिलिटीज़ का पता चल जाए, इसकी फीचर्स का पता चल जाए, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी डिस्कशन, दिस इज़ अ पेड एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन में वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है एक ही जगह पे, जिनको पहले हमने जूम में अलग से देखा है, उसकी लिमिटेशंस हमने देखी, फिर गूगल क्लासरूम में अलग से देखा। जूम में ये था कि वीडियो लेक्चर आप रिकॉर्ड कर पा रहे थे, डिलीवर कर पा रहे थे जूम के अंदर, लेकिन असेसमेंट का कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्लास मटेरियल की शेयरिंग नहीं हो पा रही थी, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आप कर पा रहे थे। और गूगल क्लासरूम में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन लेक्चर डिलीवरी के लिए आपको अलग से गूगल मीट का जो इंटरफेस था वो यूज़ करना पड़ रहा था, और लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए अलग से एक एड-इन यूज़ करना पड़ रहा था। अब ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर एक ही जगह पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो लिमिटेशन ये है वो ये है कि दिस इज़ अ पेड एप्लीकेशन, इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट हो है या जब होगा आपके पास लेटर ऑन, अगर अभी नहीं है और आप उसके अंदर अगर लॉगिन होते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन अपीयर होगी दैट वुड बी सम सच थिंग एज शोन इन दिस स्लाइड। तो ये इसमें काफ़ी सारे आइकॉन्स, आपको मल्टीपल आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये मल्टीपल आइकॉन्स बेसिकली वो डिफरेंट टीम्स हैं, वो डिफरेंट क्लासेस हैं जो मैंने इस एप्लीकेशन में, जो मेरे अकाउंट में मैंने क्रिएट की हुई हैं।
अगर आपने पहले से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ नहीं किया, पहली दफ़ा यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये जो सारे के सारा एरिया, दिस एरिया इज़ गोइंग टू अपीयर ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ यू, ये सारे के सारा एरिया खाली अपीयर होगा आपके सामने। ऑन द राइट टॉप कॉर्नर आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ज्वाइन और क्रिएट अ टीम। तो अगर आप टीम को पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं टीम को, एक नई टीम, एक नया कोर्स, उसकी क्लास को क्रिएट करने के लिए, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे ज्वाइंट या क्रिएट टीम वन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपसे जो इंटरफेस है वो पूछेगा ये कोई क्लास है, ये क्या क्रिएट क्या करने जा रहे हैं आप। अगर आप एक टीम क्रिएट करना चाह रहे हैं, नई टीम, तो आप उस पर क्लिक करेंगे जी कि एक नई टीम आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्लास है, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है, ये कोई स्टाफ कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, क्या है ये। तो आप क्लास क्रिएट करना चाहेंगे तो आप क्लास पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो भी टीम आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है, और अगर आप उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो दे पाएंगे। तो आप ये इन्फॉर्मेशन फीड इन करके अपनी टीम क्रिएट कर पाएंगे। जब टीम आपने क्रिएट कर ली तो अगला काम ये है कि आप स्टूडेंट्स को उसके अंदर ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस आपको फीड इन करना पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स को उस टीम में बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऐड कर देगी। तो वंस आपने टीम क्रिएट कर ली, जो भी टीम आपने क्रिएट की, मैंने टेस्ट टीम के नाम से एक टीम क्रिएट की और उस टीम पे जाके मैंने क्लिक किया तो वो आपके इंटरफेस में इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इंटरफेस जाके अगर देखेंगे, एक नई टीम आपने क्रिएट की, जो भी टीम आपने क्रिएट की उसका एक आइकन इधर अपीयर होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो टीम आपके सामने ओपन हो जाएगी। और जब वो टीम ओपन होगी तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं विद द नेम ऑफ पोस्ट, फाइल, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स। तो जो काम आप गूगल क्लासरूम में स्ट्रीम के टैब के अंदर कर रहे थे वो इधर पोस्ट के अंदर होगा। कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से शेयर करना चाह रहे हैं तो वो पोस्ट वाले टैब में जाके करेंगे। कोई रिसोर्स मटेरियल स्टूडेंट से शेयर करना है तो वो फाइल्स वाले टैब में होगा। असाइनमेंट्स कोई देनी है स्टूडेंट्स को, कोई क्विज कंडक्ट करना है तो वो असाइनमेंट्स वाले टैब के अंदर जाके हो पाएगा। और फिर इधर एक ऑप्शन नज़र आ रही है, जैसे गूगल क्लासरूम में आपको बताया था कि मीट की ऑप्शन नहीं है फ्री वर्जन में, तो ये पेड एप्लीकेशन है, इसमें मीट की ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक मीट का सिंबल, एक मीट का बटन जो है वो लगा हुआ है। और अगर आपने क्लास क्रिएट कर ली है, स्टूडेंट्स ऐड कर लिए हैं, तो अगला काम ये है कि आप अपनी मीटिंग जो है उसको शेड्यूल करना चाह रहे हैं। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आप ये मीट का बटन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी मीटिंग करना चाह रहे हैं या मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो जो भी सिनेरियो है, अभी आपने लेक्चर डिलीवर करना है या फ्यूचर के लिए शेड्यूल करना है, आप उसको क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली। तो जब आपने शेड्यूल मीटिंग की ऑप्शन ली है तो ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि ये क्या है मीटिंग, कौन लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे या करना चाहिए, कब ये मीटिंग है, कितने बजे शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, ये सारी ऑप्शन आप इसके अंदर देंगे। एडिशनल कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप मीटिंग के हवाले से देना चाहें कि ये आपका फर्स्ट ऑडियंस है, सेकंड ऑडियंस, क्या टॉपिक्स आप कवर करेंगे इसके अंदर, तो वो आप मैसेज कर सकते हैं। काइंडली अपने माइक से उनको फॉर अ वाइल म्यूट कर दें, एंड आपको टाइम दिया जाएगा डिस्कशन का, तो उसमें आप अपना माइक ओपन कर दीजिएगा, अपने माइक काइंडली म्यूट कर दें। तो मीटिंग जब शेड्यूल करने की तरफ आप जाएंगे तो दिस वुड बी द इंटरफेस जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मीटिंग का टाइटल क्या है, कब मीटिंग स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है। और अगर चूँकि आपने मीटिंग एक टीम के अंदर जाके क्रिएट की है तो टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एडेड है। उनके अलावा अगर कोई और बंदा आप इस मीटिंग के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख सकते कि उसे ऐड किया जा सकता है। तो वंस आपने एक मीटिंग शेड्यूल कर ली तो उसी टीम के इंटरफेस के अंदर आपको वो मीटिंग जो है उसका शेड्यूल नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स को भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा जिन लोगों को आपने ऐड किया हुआ इस टीम के अंदर, उनको ये इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक मीटिंग शेड्यूल हुई है जो इस दिन होना है थर्सडे 25 फरवरी को, इस केस में सुबह 9 बजे। अब जब मीटिंग स्टार्ट करनी है, ये मीटिंग के जो एडिशनल ऑप्शंस उनको कंट्रोल करना है वो कैसे होंगी, वो करने के लिए आपको मीटिंग की जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वही कि प्रेजेंटेशन के राइट्स किसके पास होंगे, माइक्स को कंट्रोल करना है, ऑडियो को, वीडियो को कंट्रोल करना है, वो कैसे होगा। तो आप ये जो 3 डॉट्स वाला बटन है उस पर क्लिक करें, मीटिंग डिटेल्स में जाएं, तो इधर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है मीटिंग ऑप्शन के नाम से, इसको क्लिक करें। ब्राउज़र में एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी
इस एप्लीकेशन में आपके सामने ये ऑप्शंस आ रही हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या कौन लोग लॉबी को बाईपास करें, जब लोग आपकी मीटिंग को ज्वाइन करें तो आपको पता चले, या बाहर जाएं तो आपको पता चले या ना चले, प्रेजेंटेशन के राइट्स आपको देना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं, अटेंडीज़ के माइक्स को अनम्यूट करने की ऑप्शन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, अटेंडीज़ के रिएक्शंस जो हैं उनको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। जब आपने सारा काम कर लिया है उसी मीटिंग के अंदर जाएंगे, मीटिंग अगर आपने स्टार्ट करनी है, लेक्चर डिलीवर करने की तरफ जा रहे हैं तो आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा फिर कि आपकी फर्दर अपनी प्रेफरेंसेस क्या है, कि कैमरा ऑन करना चाहते हैं, माइक ऑन करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक सेटिंग्स करेंगे और ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेंगे, तो आप मीटिंग में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो जब मैंने ये स्नैपशॉट लिया उस वक्त ये था कि मीटिंग में मैं खुद अकेला ही था, तो लिखा हुआ वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। तो जब आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पास ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखें आप, तो आपके पास ये अपवर्ड एरो की है, एक माइक का बटन आ रहा है, एक कैमरे का बटन आ रहा है और कुछ और बटन हैं आपके पास। तो माइक का बटन डेफिनेटली उससे आप अपना माइक भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, माइक आप अपना ऑन कर पा रहे हैं, ऑफ कर पा रहे हैं, कैमरे से आप अपनी वीडियो को कंट्रोल कर पा रहे हैं, या ऑन करना है या ऑफ करना है। फिर आपके पास ये एक पार्टिसिपेंट्स वाला बटन है, उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कौन कौन से लोग आपकी मीटिंग में हैं इस वक्त। उसके साथ एक चैट बॉक्स है जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट ने कोई मैसेज फ्लोट किया है तो वो आप चेक करना चाहें तो वो चैट बॉक्स से आपको मिल जाएगा। फिर ये 3 डॉट्स वाला बटन है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो कुछ आप चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, टाइम काफ़ी कम है तो मैं काफ़ी क्विक हूँ अभी। तो 3 डॉट्स वाले बटन में आप जाएंगे तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रही है कि लिखा हुआ अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग का। तो इसका मतलब ये है कि मैं रिकॉर्डिंग पहले से मैंने स्टार्ट की हुई थी। अगर आपने पहले से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की तो इसी 3 डॉट वाले बटन में जाएंगे, नीचे आपके पास इधर इसी जगह पे ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अगर आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी मीटिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपने स्टॉप करनी है फिर इसी 3 डॉट वाले बटन में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। फिर आपके पास ये है कि आपने अगर अपनी स्क्रीन शेयर करनी है डेस्कटॉप की, या कोई भी फाइल PDF या अपने ब्राउज़र या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो एरो की वाली ऑप्शन आपके पास बटन है उसको यूज़ करेंगे, और जो भी रिसोर्स आपका कोई PPT फाइल है, कोई वेब ब्राउज़र है, कोई ड्रॉप बॉक्स की फाइल है, कुछ भी जो आप शेयर करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, वो चूज़ कर लेंगे तो वो शेयर होना शुरू हो जाएगा वो रिसोर्स आपके ऑडियंस के साथ। फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि एडिशनली अगर आप पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं और ये जो 3 डॉट्स का बटन आपके पास अब आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनके माइक को कंट्रोल कर सकते हैं। सारे के सारे ऑडियंस जो उसको माइक अलाउ कर सकते हैं, सबके माइक्स को म्यूट कर सकते हैं। और फिर आपके पास आखिर में एक ऑप्शन आ रही है कि जिससे आप अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को डाउनलोड करने के लिए आप ये जो आखिरी ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको हम क्विकली अभी डिस्कस कर सकते हैं। वी आर स्टिल हैविंग 5 मिनट्स, अबाउट 5 मिनट्स विद अस। सो द माइक इज़ नाउ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। कोई भी आपका कमेंट है या क्वेश्चन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अल्लाह तक गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, जी, ये जब ये जो अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम के आप समझा रहे थे, तो ये हमारे पास जब ओपन होता है तो पता नहीं मेरे लैपटॉप पे ऐसा ये जो पट्टी जिस पे ना वो हैंड रेज वाला ऑप्शन है और 3 डॉट वाले, ये समटाइम्स स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं, यानी आपकी जो स्लाइड शो हो रही है ना 3-4 लाइनें ऊपर वो नीचे जो नज़र नहीं आती, तो इसको ख़त्म करने का मैं तो बड़ा इसको कोशिश करता हूँ लेकिन ये नहीं ख़त्म होती, इसका क्या तरीक़ेकार है? आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप वो कोई PPT फाइल आपने ओपन की है या कोई PDF डॉक्यूमेंट ओपन किया उसके ऊपर आ जाती है ये पट्टी? हाँ जी, जी और आपकी जब शो होती है तो उसके ऊपर भी आ जाती है। मतलब आपने जब हमें स्लाइड शो कर रहे थे ना तो उसके ऊपर ये बार आ जाए, इसके ऊपर टाइम और हैंड रेज वाली ऑप्शन और कन्वर्सेशन, ये ऑप्शन जो है उसका वो 4-5 लाइन नीचे वाली जो है वो नजर ही नहीं आती, और उसको वो क्लिक करते हैं भाई चलो ये चली जाए, वो भी नहीं जाती, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? इसका अभी
इसका पट्टी के अलावा पट्टी के साथ साइड पे रख के एरो आएगा तो खत्म हो जाएगी। सर मैं तो बड़ी ट्राई की है सर पट्टी के अलावा, पट्टी पे नहीं करनी, उसके अलावा बैकग्राउंड। हाँ जी, उसके अलावा आप कहीं भी क्लिक करेंगे, ठीक है, ओपन स्पेस में तो वो मैंने ओपन कर रहा हूँ सर, आप वो चाहती है फिर उधर उसी तरह दोबारा आ जाती है। ये आपके कंप्यूटर से तैयार है फिर इसको। हाँ ये पता नहीं कोई सेटिंग में तो प्रॉब्लम है। मुझे बड़ी डिस्टर्ब दो तीन लाने जो होती है ना तो बड़ी डिस्टर्ब करती है। डॉक्टर साहब वैसे लाइटर मोड में कह रहा हूँ कि क्योंकि अब आप हर सेशन में आप सवाल करते हैं इसलिए वो हाथ खड़ा रहता है, इसलिए नीचे नहीं होता जो है ना। नहीं कोई और है किसी क्वेश्चन तो वो काइंडली पूछ ले।